Good evening, everyone. I think we are on talking terms, right? Good evening, everyone. Um, Welcome to today's open house seminar on tourism, next revolution in career development. I think while I see many youngsters, in fact, I'm very happy to see that there are many youngsters in the room. And this is an age when you are really wondering what is that perfect inflection point of a career that can pay me well, that can allow me to live a good life, and at the same time allow me to explore the world that I want to explore. So on that lines, we are very happy that the Ahmedabad Management Association has organized this seminar on tourism, which is next revolution in the career development. What we are going to do is we have three very eminent panelists with us. They'll be talking one after the other on the topic, and after that we can take a few questions if we have time going forward. Having said that, I'll briefly introduce all the three panelists together as I welcome them as well. I'm very happy to say that the first gentleman with us here on the dais is Mr. Ratnadeep Padmanabh. He's the director of Snowflakes Travel and Tourism Management College. He's also been the former director of Firdaus Amrut School, Shahibag, and is chairman of the HBK School, Memnagar. His family is responsible for giving the first four-star hotel of Gujarat state named Nataraj in 1975. Having more than 40 years of academic experience, Mr. Padmanabh is now director at Snowflakes Travel and Tourism Management College in Ahmedabad. He has shared his expertise with various state and national level tourism bodies and has trained thousands of travel agents across Gujarat on behalf of Tourism Board and various other countries as well. Mr. Sir, thank you so much for agreeing to come here and spend some time with us. We're truly honored. I have a quick token of love and affection on behalf of AMA. Can we have a loud round of applause for Sir, please? Uh, we also have the honor to have with us Mr. Kirti Thakur sir. He has served Gujarat Tourism Corporation, we very lovingly call as Gujarat Tourism or TCGL, for over 30 years in various capacities since 1979. He has won several accolades for his innovative promotional efforts in tourism and was closely associated with International Kite Festival, I think, which has now become a global phenomenon on the banks of Sabarmati River. Khushbu Gujarat Ki Tourism Promotion Campaign, which was led by none other than Piyush Pandey of Ogilvy, and we all know how Amitabh Bachchan ji has taken the country by storm, and he has acquired training in rural tourism from Israel as well. Kirti sir, as I understand, is a legend in the landscape of Gujarat tourism, and we are very fortunate that we have him here with us today. So welcome, and once again, let's have a loud round of applause. And we also have Mr. Keyur Panchal with us. He's a travel entrepreneur. He's a film director and researcher in neurophenomenology and Vedanta. After working in India's big travel companies, he started his entrepreneurial journey along with his passion to guide tourists and promoting Indian heritage and culture. He is now majorly involved in direction in tourism and cultural stories and building marketing strategy for the tourism. So once again, thank you so much, Keyur bhai, for being here with us, and let's have a loud round of applause for him. Uh, let's see if we can get some more chairs in because I see a lot of people are waiting. Acha, Aveshan, lovely. Just wait for a little more time. We'll try and get some more chairs in the corridor possibly. All right, so that pretty much is my job for the day. I'll come back for the vote of thanks though. And what we do is we start with you, Ratnadeep sir, and then we go with Kirti sir's inputs, and then at the end we'll have Keyur bhai coming in with his thoughts as well. Of course, feel free to note your points, take a few notes as well. I'm sorry, I've just, yeah. Okay. All right. So take few notes and whatever questions you have towards the end, we'll take some questions as well. So please.
Yeah. Thank you, sir. Thank you, Kirti bhai. Namaskar. Thank you, Keyur bhai. I am very happy to see the jam-packed hall, and especially the young crowd, as he has mentioned. Yes, this is a field for young people, but not only for young people, it is filled for everyone. You can see Kirti sir also with us, and he of course is a legend. He has spent his entire life with travel industry and the Tourism Corporation of Gujarat Limited. He is the pioneer and he is the first manager for Tourism Corporation. So first of all, I would like to ask you what language will be preferable here? Gujarati, Hindi, English? Hindi? Gujarati? तो हिंदी इज़ फाइन राइट, क्योंकि हिंदी बोलूँगा तो गुजराती तो आ ही जाएगा अंदर, एंड आई सपोज ऑल गुजराती कैन स्पीक हिंदी एंड अंडरस्टैंड हिंदी वेल, सो दैट्स फाइन. सो ओके, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी. तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले मैं ये आपसे शेयर करूँगा कि आज का यूथ ट्रैवल को क्या समझता है. कोई मुझे बताएगा कि आप यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए हैं, आपके अंदर, दिमाग के अंदर, आपके दिल में ट्रैवल के लिए क्या ख्याल हैं, वाई यू आर हियर एंड व्हाट यू वांट टू डू इन ट्रैवल. कोई भी मुझे एक आध दो. यस, peace for mind. Okay, so you are a avid traveler, you can say. You would like to travel for the peace, mental peace. Anyone? Yeah. Sir, I think these days traveling has become more than mental peace because people like to take vacations, but when we come back from vacations, we don't like their normal life. तो पीस चली जाती है मतलब ट्रैवल के वापस आने के बाद. You mean to say that? Okay. Yes. सही बात है. वर्क फ्रॉम होम कोरोना के जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं कह सकता हूँ फॉर द आईटी पीपल स्पेशली, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मिल गया है तो मतलब वो लोग के लिए वर्क फ्रॉम होम की बजाय वर्क फ्रॉम आउट स्टेशन हो गया है. सो दे आर एंजॉइंग द लोकेशन एट द स्पेयर टाइम, एंड बाकी के टाइम में काम कर लेते हैं, तो एक अलग से बेनिफिट है. ओके, एनीवन फ्रॉम द बैक? यस. So it's kind of an gathering an information for the different culture and people. Yes. Wonderful. કેવી રીતે પ્રોફેશનમાં કન્વર્ટ કરશો? Okay, good point. I will come to this on the later on. हाँ, बाद में मैं आता हूँ इसके ऊपर. और कोई पीछे से बताएगा मुझे? ओके, सो ट्रैवल के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो लोग ये समझते हैं कि हमें ट्रैवल करना है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं. फाइन, दैट्स शुड बी द मोटो. वो एक आपका दिमाग में ख्याल होना चाहिए कि अगर मैं ट्रैवल में although at the end you can come from the front door, it will be easier to settle down in the chairs. From here. थोड़े आगे से आ जाओ, थोड़े पीछे से, quickly. इस तरफ से आ जाइए तो आप इजीली सेटल हो जाओगे. Correct. तो ट्रैवल के लिए लोगों के दिमाग में, खास करके यंगस्टर्स के दिमाग में ये होता है कि मैं ट्रैवल फील्ड में जाऊंगा या मैं ट्रैवल फील्ड में जाऊंगी तो मुझे घूमना मिलेगा, है ना. तो सबसे पहला वो एक जो मिथ है वो मैं ब्रेक कर देता हूं. घूमना जरूर मिलेगा, बट आफ्टर सम टाइम उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ट्रैवल को समझना तो पड़ेगा. ट्रैवल है क्या वो तो समझोगे, और फिर ट्रैवल हैज ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि यू कैनॉट इवन इमेजिन, यू कैनॉट काउंट. आपके दिमाग में है कि मुझे, मेरा ये आर्ट है, कैन आई डू विथ ट्रैवल? यस, यू कैन डू दैट विथ ट्रैवल. तो आपके जो भी एक स्पेशलिटी है अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल, उस स्पेशलिटी के साथ आप ट्रैवल करो, ट्रैवल कराओ, पैसे कमाओ. खास करके पेरेंट्स के दिमाग में ट्रैवल के लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्या है ना, वो क्लियर नहीं है. और हमारे गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है
कि एक स्टूडेंट्स के लिए पीयर प्रेशर है, मेरी दोस्त ने ये किया ना तो मैं ये कर लूँगी, मैं उसके साथ ही रहूँगा, चाहती हूँ 12 स्टैंडर्ड तक 12th तक मैंने मेरी दोस्त के साथ किया, तो मैं 3 साल भी उसने जो कोर्स लिया वही कोर्स मैं करूँगी, राइट? है ना ऐसा? बहुत है, नहीं मतलब नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जितने भी मेरे पास अप्रोच आते हैं स्टूडेंट्स के, उसमें ऐसे आते हैं कि सर बात सही है, अच्छा लग रहा है कोर्स, लेकिन क्या है मेरी दोस्त कर रही है तो मैं वो करूँगी। आई सेड फाइन, दैट्स योर चॉइस। वैसे एक दैट इज़ नंबर 1। पेरेंट्स की साइड से इशू क्या है कि पेरेंट्स को स्टेटस प्रॉब्लम है ना, कि नहीं इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कॉमर्स में है तो सीए करना है, सीएस करना है, क्योंकि फिर शादी कैसे होगी, अदरवाइज लड़की अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये सब सोशल इश्यूज़ हैं, गुजरात में ज़्यादा है, बाहर शायद और स्टेट्स में कम होगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया देखो तो ये स्टेटस इश्यूज है। इसलिए कई फील्ड टूरिज्म जैसे डेवलप नहीं हो पाए हैं ठीक से एज एन करियर। सो आई हैव ट्रेन मोर देन 3-4,000 पीपल स्टूडेंट्स, राइट? मैं आपको ये बता सकता हूं कि उसमें से करीब 70-80% स्टूडेंट्स आर स्टिल इन ट्रैवल एंड दे आर अर्निंग इनटू लैक्स। Around 20% students are into foreign countries, into travel, and they are earning into so-called golden currency, right? In dollars and pounds. So ये सब possible travel से है, पहले तो ये समझ लो। If you want to understand what is travel, तो travel समझने के पहले travel में जाने से मिलता क्या है वो पहले समझोगे तो शायद आपका inclination towards travel थोड़ा change हो जाएगा, थोड़ा correct हो जाएगा। Okay, अब जैसे डिग्री हम लेते हैं ना हर कोर्स में, वैसे इस कोर्स में भी डिग्री मिलती है, बैचलर्स डिग्री होती है, मास्टर्स डिग्री होती है, ट्रैवल में आप पीएचडी कर सकते हो, राइट? वन ऑफ माय कलीग जो मेरे साथ ये जर्नी में 2008 से हैं, शी इज़ राइट नाउ डूइंग हर मास्टर्स इन सस्टेनेबल टूरिज्म फ्रॉम स्वीडन, राइट? सो ये मैं समझाना चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है। अब समझ लो, नाउ शी हैज़ जस्ट कंप्लीटेड एंड शी हैज़ गॉट अ वंडरफुल जॉब इन स्वीडन एंड अब आगे करियर कहाँ ले जाएगी आप समझ लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि, और ये ट्रैवल में है कि आप चाहे कोई भी लेवल के स्टूडेंट्स हो, मुझे बहुत स्टूडेंट्स 12th अप्रोच कर रहे हैं ना, पूछते हैं कि सर अब 12th में हूँ, 12th मेरा ख़त्म हो जाएगा, कितना परसेंटेज होगा तो मैं आज आपके वहाँ एडमिशन मिलेगा? मैं बोलता हूँ पास हो जाओ, क्योंकि आप जो अभी पढ़ रहे हो ना उससे ट्रैवल की पढ़ाई से कोई निस्बत ही नहीं है। क्योंकि आप 3 साल मेरे साथ रहने वाले हो तो मुझे पता है मुझे आपसे क्या करवाना है, बट पास हो जाओ 12th में पहले। एंड फॉर योर नॉलेज सीरियसली कहता हूं कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कोई भी फील्ड है, आप ट्रैवल में अपनी करियर बना सकते हैं। मेरे पास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, पीयर प्रेशर से या फिर पेरेंट्स के सोशल प्रेशर से जो मैंने डिस्कस किया उससे इंजीनियरिंग तो ले लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में 2 एटीकेटी, सेकंड सेमेस्टर में 3 एटीकेटी, थर्ड सेमेस्टर में 4 एटीकेटी करके फोर्थ सेमेस्टर तो करने लायक ही नहीं बचा। तो फिर बोलता है कि अब छोड़ना पड़ेगा, अब छोड़ना पड़ेगा तो जाऊंगा कहाँ, कौन लेगा मुझे? उसके दिमाग में कहीं ट्रैवल आ गया है और वो आ गया है मेरे पास। वैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं कि जो इंजीनियरिंग छोड़ के ट्रैवल में है और सक्सेसफुल हैं, क्योंकि माइंड तो है, साइंस तो लिया है, सो कैलकुलेशन है पावरफुल, राइट? एक सही रास्ता चाहिए। सो ट्रैवल में आपको ये समझना है कि आपका बेसिक नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, योर लैंग्वेज आई मीन योर कम्युनिकेशन एबिलिटी इज रिक्वायर्ड, नहीं है तो डेवलप की जा सकती है। योर एटीट्यूड टॉवर्ड्स पीपल, टॉवर्ड्स सोसाइटी, टॉवर्ड्स ट्रैवल शुड बी देयर, प्लस जोग्राफी, बेसिक जोग्राफी नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। एंड आपके पास नहीं है तो वो भी पूरा आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। कैसे करना है वो जो आपके फैकल्टीज़ है जहाँ पर आप कोर्स करोगे वो आपको बताएंगे। बट ट्रैवल एक बार आपने करियर डेवलप कर दी, आपने फील्ड में एंटर हो गए हो, फिर आपको वेवरिंग नहीं करना है, आपको फील्ड में रहना है। मैं कीर्ति सर से यही हमारी बात चल रही थी जस्ट 10-15 मिनट्स बैक। बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने भी तैयार किए हैं, हमने भी मिल के भी तैयार किए हैं, बट हम जब पूछते हैं तो भाई अब क्या कर रहे हो साल 2 साल के बाद, नहीं सर अब मैंने तो फील्ड छोड़ दिया, मैं तो कहीं और कर रहा हूँ। तो आपने ट्रैवल क्यों लिया था? तो फोकस हो तो ही ट्रैवल में आना है।
क्योंकि ट्रैवल में फोकस रहना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैवल में सीखना बहुत है। इट्स एन एंडलेस प्रोसेस। आपको शायद सरप्राइज हो जाएगी सुन के, 3 लाख से ज़्यादा डेस्टिनेशंस हैं वर्ल्ड में वेयर यू कैन ट्रैवल। सो मतलब पूरी ज़िंदगी आप ट्रैवल करोगे ना तो भी एक डेस्टिनेशन रिपीट नहीं होगा, यहाँ तक आप ट्रैवल कर सकते हो। तो अब वो पूरा आपको समझना सीखना पड़ेगा व्हेन यू आर सेलिंग ट्रैवल। कोई कस्टमर आ गया, आपको पूछेगा कि मुझे ये लोकेशन पे जाना है, आपको पता नहीं, आई एम सॉरी मुझे पता नहीं, मैं कल बताऊंगा, ऐसा नहीं चल सकता। तो आप बोलोगे सर 3 लाख ट्रैवल को, डेस्टिनेशन को मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा या प्रिपेयर करूंगी। बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी नॉलेज वहाँ स्टेप इन करता है, क्योंकि आपका बेसिक एक क्लियर हो, फोकस होना चाहिए कि भाई ये लोकेशन की बात चल रही है तो ये यहाँ पर होगा, जोग्राफिकली ये लोकेशन ये है, तो ये इतनी सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है ना। सो उस टाइम पे आपका कम्युनिकेशन भी आएगा पिक्चर में, आपकी एबिलिटी कम्युनिकेशन की वहाँ पर आएगी। सो ट्रैवल में ये सब चीज़ें बेसिक हैं और वो धीमे धीमे आप डेवलप कर सकते हैं। ट्रैवल में आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, 3 साल का बैचलर्स प्रोग्राम किया, 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया, बहुत कुछ कर सकते हो आप। बहुत सारे लोकेशंस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रैवल कराते हैं, है ना। तो उसके लिए आपका पहले फोकस होना ज़रूरी है कि मैं ट्रैवल में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, फिर ट्रैवल में आप बोलोगे सर आपने बोला कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल, तो हम कौन सा करियर सिलेक्ट करेंगे? इट्स प्योरली ऑन योर चॉइस, अप टू यू। आप बोलोगे मुझे समझ ही नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है, मैंने कभी किया नहीं, तो हाई विल अंडरस्टैंड कि कौन से करियर ऑप्शन इज बेस्ट करियर ऑप्शन, है ना, यही सवाल आएगा। एवरी करियर ऑप्शन इन ट्रैवल इज बेस्ट। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, टिकटिंग, है ना, आप फ्लाइट की टिकट का काम करते हो, दैट्स अ ट्रैवल फील्ड, उसमें भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं हर महीने। आप बोलोगे टूर गाइड में आराम से 1-2 लाख रुपए हर महीने आप कमा सकते हो इन आफ्टर 2-3-4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। शुरुआत तो धीरे से ही होगी, बट एक बार आपने एक ग्रिप ले ली फिर आप आराम से कर सकते हो। ट्रैवल कंसल्टेंट, एक्सेलेंट जॉब। टूर मैनेजर, यू आर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग, आपको पसंद है ट्रैवल, टूर मैनेजर बन जाओ। 20 दिन, हर महीने के 20 दिन यू आर आउट ऑफ योर टाउन, तो फ्री में घूमो। कंपनी आपको जेब में पैसा दे देगी, भी ये पैसा है, आपको घूमना है, आपका होटल बुकिंग हो गया, आपकी टिकट हो गई है, और ये मेरा पूरा 30 लोगों का ग्रुप है, आपको उसके साथ रहना है, मैनेज करना है ना। तो आप घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो, आपके कॉन्टैक्ट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जितने भी कंट्रीज, जितने भी स्टेट, जितने भी सिटी आप अप्रोच कर रहे हो, वो सबका कल्चर, वो सबके लोग, उनका फेस्टिवल, उनका पूरा सिस्टम आपको समझ में आ रहा है। सो यू आर लर्निंग। सो ट्रैवल के लिए ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इट्स ए कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, इसलिए आप कभी बोर नहीं हो जाते हो, जो आपकी जनरेशन में सबसे ज़्यादा इशू है कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हो कोई चीज़ से, है ना। तो ये इस यहाँ पर भी नहीं है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है। कोई एक पर्टिकुलर करियर आपने डेवलप कर ली, उसमें आपने 4 साल कर दिए, 5 साल काम कर लिया, आप कंटाल गए उस चीज़ से, स्विच ओवर टू अनदर करियर इन ट्रैवल ओनली, इजीली पॉसिबल, बिकॉज वो 4 साल काम करते करते आपको सब कुछ पता आ गया है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये करियर ऑप्शन में क्या होना, क्योंकि आपके कलीग्स हैं सब फील्ड में, आप यू कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद देम। सो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग एंड यू आर अप टू द मार्क फॉर दैट पर्टिकुलर करियर। सो ट्रैवल में इतने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड ट्रैवल इज़ वन पोर्शन ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म 3 चीज़ से बनता है, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी एंड एयरलाइन, आई मीन ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रैवल ये तीनों फील्ड को समझता है, ये तीनों फील्ड को हैंडल भी करता है ना। एयरलाइन है तो टिकटिंग आता है, हॉस्पिटैलिटी है तो होटल बुकिंग आता है। सो यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर 2 फील्ड ऑल्सो ऑफ टूरिज्म। सो ट्रैवल इज़ नंबर 1 इन दैट वे, क्योंकि आप ट्रैवल में हैं तो आप हॉस्पिटैलिटी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कस्टमर्स के ट्रांसपोर्ट हैंडल करने हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप जैसे ये सोचोगे कि ट्रैवल कैसे डेवलप हो रहा है ना। तो ट्रैवल कैसे डेवलप हो रहा है इसकी बात करें तो इकोनॉमी क्या है हर एक कंट्री की, उसके ऊपर से उस पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट समझ में आता है। तो करीब 30 से 40 कंट्री वर्ल्ड के अंदर
उनकी इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन ट्रैवल। 2-3 एग्जांपल दे दूं। दुबई में है क्या? और सिंगापुर एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। हाँ, इंडोनेशिया, बाली जैसे लोग जाते हैं, राइट। फिर मालदीव्स, वियतनाम अभी शुरू हुआ है, वंडरफुल। जिसको 5 साल के पहले कोई जानता नहीं था, वियतनाम ने खाली इतना कर दिया कि डायरेक्ट फ्लाइट कर दी 2-4 सिटी से इंडिया के, और ऑटोमेटिक वियतनाम पॉपुलर हो गया। थाईलैंड कुछ नहीं है, खाली टूरिज्म। और थाईलैंड के लिए तो इतना ब्यूटीफुल मैं कह सकता हूं कि आज से 10 साल पहले जो टिकट थी वही आज भी वही टिकट है। मतलब उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को इतना हैंडल करके रखा है। होटल 4 स्टार या 5 स्टार होटल 2000 में 3000 में मिल जाएगी आपको, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री को पकड़ के रखा है। दैट्स व्हाई ट्रैवल इज बूमिंग इन सिटीज, कंट्रीज लाइक दिस। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि तो सिर्फ ट्रैवल पे चलते हैं। पूरा देश, उनकी इकोनॉमी का 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ट्रैवल है। अब हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं तो थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, उनका विजन था, उन्होंने बहुत कुछ काम किया, बराबर है। एक पॉलिटिकल लीडर होता है, उसका पॉलिटिकल विल होता है। फॉर्चुनेटली उनमें वो पॉलिटिकल विल है कि उन्होंने हर एक एंगल से ट्रैवल को समझा है। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के कितने सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए। हमारे सिटी में ही ट्रेन शुरू हो गई, मेट्रो, बुलेट हो रही है ना। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा फाइनली जब शुरू हो जाएगा 2027-28 में, तब लग जाएगा। तो इतने सारे पैसे एक बार लगाना है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, तो एक इंसान के पास विजन चाहिए, जो उनके पास फॉर्चुनेटली है। साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो इंडिया इज़ नंबर 1 इन ट्रैवल, फॉरेन अर्निंग, बराबर। एंड बहुत सारे लोग हमारे इंडियंस फॉरेन ट्रैवल भी करते हैं। सो ट्रैवल से 2 टाइप का ट्रैवल है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, इनबाउंड आउटबाउंड, राइट। सो ये सब चीज़ें आपको धीमे धीमे समझनी है। और ट्रैवल आपको यंग रखता है, क्योंकि आप ऐसे इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आप किसी से बात करोगे तो आपने अगर ट्रैवल किया है तो दिख जाएगा। हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो द पर्सन, यू कैन ट्रैवल विद द पर्सन। आप कोई पर्टिकुलर पर्सन के साथ ट्रैवल कर लिया ना, तो आप उसके बारे में सब कुछ समझ जाओगे। 24 घंटा किसी के साथ आपको ट्रैवल करना है, उसके साथ रहना है, क्योंकि इंसान एक्टिंग कर सकता है 24 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही वो आपने पूरा दिन 2 दिन उसके साथ गुजारे, उसकी ओरिजिनलिटी बाहर निकल जाएगी। तो वो व्हाट इज़ दैट? सो व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, यू आर इनटू योर ओरिजिनल कॉस्ट्यूम। आप नेचर से कनेक्ट होते हो, है ना, फ्रेश हो जाते हो, आप कई सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो ट्रैवल, टू लर्न ट्रैवल इज ईजी। बाकी सब कोर्स के हिसाब से मैं कहता हूँ, डॉक्टर बनना है बहुत मेहनत करनी है, इंजीनियरिंग करना है सख्त मेहनत करनी है, सीए करना है 2% रिजल्ट आता है, 3% रिजल्ट आता है। ट्रैवल में रिजल्ट 80% से ज़्यादा आता है, क्योंकि हम रिजल्ट यानी मार्क्स नहीं देते, हम पॉइंट्स देते हैं। एंड बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो उसमें से कोई एक करियर में तो आप फुलफिल कर दोगे और निकल जाओगे। इसलिए द सक्सेस रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स विद दिस इंडस्ट्री इज वेरी हाई। एट द एंड हम पढ़ते क्यों हैं? करियर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वो यहाँ 100% सक्सेसफुल हो सकता है, ये मेरा कहने का है मतलब है। आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, आपको फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती है, सब कुछ ओवर ए पीरियड, जैसे जैसे आप इस फील्ड में आओगे, कम्युनिकेट करोगे, आपको करना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको खाली गुजराती आती है, हिंदी भी टूटी फूटी बोल सकते हैं, एंड इंग्लिश तो ओ माशाल्लाह, वो आज इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली फॉरेन सप्लायर से बात करनी है। तो धीमे धीमे करके आप वो चीज़ को डेवलप कर लेते हो। तो ये सब अपॉर्चुनिटी ट्रैवल अपने आप देता है आपको। सो ग्रोथ, योर मेंटल ग्रोथ, योर फाइनेंशियल ग्रोथ, योर सोशल ग्रोथ इज देयर बिकॉज ऑफ ट्रैवल। और कुछ आपको समझना है, बताना है तो बताइए, आप कोई सवाल पूछ सकते हो मुझे। एनीथिंग एल्स? या
I have trained one lady 60 years old and she is running her own travel agency today after 7 years. मैंने 7 साल पहले एक 60 years old lady आई थी मेरे पास, मुझे एक टिकटिंग सीखना है, आयटा करना है. तो लेडी आई, पैसे वाली थी, पैसे की ज़रूरत नहीं थी, गूगल्स फॉरेन कंट्री के पर्स 30-40 हज़ार का और पोर्शे कार की किचन रखी थी टेबल पे, है ना. तो मैं समझ गया था कि ये टिकटिंग का कोर्स कह रही है, उसके बस की बात नहीं है, उनको करना ही नहीं है. मैंने कहा क्यों आपको करना है? बोलते मुझे ट्रैवल एजेंसी खोलनी इसलिए मुझे टिकटिंग करना है, क्योंकि मेरी कंपनी जो है मेरे हस्बैंड की, वो बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हो, टिकटिंग मुझे कमाना है. मैंने कहा मैम इफ़ यू विल गिव मी द परमिशन आई विल गाइड यू. तो बोले क्या? बोला आपको मैनेजमेंट करना चाहिए ना ट्रैवल में, आपको मैनेज करना है. इस एज पे आप थोड़ी टिकट करने बैठोगे. और टिकटिंग की बात कर रहे हो, मैं आपको स्टूडेंट्स दे दूंगा टिकटिंग के, जो आपके ऑफिस में बैठ के टिकटिंग आपके लिए कर लेगा, पर आप मैनेज करो. मुझे किसी ने ये बताया नहीं. मैंने कहा ठीक है मैं बता रहा हूँ. बोलते 2 दिन का टाइम दो. वो दूसरे दिन आ गई, एनरोल कर लिया सक्सेसफुली. 40 स्टूडेंट्स की बैच थी. शी स्कोर्ड हाईएस्ट. कॉन्वोकेशन यही हुआ था AMA में. उनके हस्बैंड आए मेरे पास, बोले कि सर आपसे कंप्लेन है. मैंने कहा कॉन्वोकेशन के दिन कौन कंप्लेन करता है? बोले, मैंने कहा सॉरी सर बट क्या है? बोले आपके कारण मेरी वाइफ है ना रात को 2-2 बजे उठ के पढ़ती थी एट एज ऑफ 60 एंड 7 साल से अपनी एजेंसी चला रही है. मेरे ही 4 स्टूडेंट उनके वहां, एक स्टूडेंट की तो उन्होंने शादी भी करवाई. तो ट्रैवल शादी भी करा लेता है. तो कोई एज लिमिट नहीं है ना. सो आपका यस नहीं. देखो ज्योग्राफी जो आप पढ़ रहे हैं या कोई भी पढ़ता है, हम 7th 8th 9th में भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट. वो ज्योग्राफी है. टूरिज्म ज्योग्राफी इज डिफरेंट, है ना. तो वो आपको पढ़नी है. दिस जस्ट वन मॉड्यूल, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. देन लेटर ऑन एंटायर लाइफ यू कैन लर्न फ्रॉम दैट बेसिक नोट. Sir, what I suggest is if we can take the questions later, हो सकता है कि शायद आपके questions कीर्ति सर या केयूर भाई of course, अपने yes, of topics में cover करने वाले हैं. Then whatever is not covered by 3 of the speakers, we can take that in the question answer. So that'll be Perfect. more efficient Yes. by time, right? But meanwhile, sir, if you want to answer him quickly and wrap it off, then we can move to Kirti sir. सो ज्योग्राफी आपको करना है, बट ज्योग्राफी साइंटिफिकल ज्योग्राफी जो आप बैठते हो क्या करना है वो नहीं करना है आपको. बेसिक ज्योग्राफी आपको पता है कौन सा कंट्री कहाँ पर, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर, उसकी वेदर क्या हो सकती है, डिस्टेंस फ्रॉम अदर कंट्री, वो सब ज्योग्राफी आता है. फाइन देन, या थैंक यू सो मच एंड आई विल कम बैक टू यू इन क्वेश्चन आंसर राउंड. यस आपको पूछना है. जब मेक माई ट्रिप आया ना नया तो लोगों ने बोला ट्रैवल एजेंसी बंद हो जाएगी. बट हम अमेरिका से 30, 40, 50 साल तो पीछे हैं. तो वहाँ तो मेक माई ट्रिप जैसी कोई हज़ारों एजेंसियाँ खुल गई होगी ऑनलाइन. अभी भी वहाँ ट्रैवल एजेंट्स हैं, चालू है. देयर इज़ नो सैचुरेशन. क्यों? क्योंकि हर रोज़ नया बच्चा पैदा होता है, हर रोज़ वो 20 साल का होता है एंड फिर उसको ट्रैवल करना होता है. लोकेशंस रोज़ नए बन रहे हैं. मैं आपको 1000 लोकेशन दिखा सकता हूँ, आपने कभी उसका नाम ही नहीं सुना होगा, और वो मैं रोज आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि रोज नया लोकेशन आ रहा है. आप उदयपुर की बात कर लो. उदयपुर लोग जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, फ्री टाइम हो गया 2 दिन उदयपुर निकल गए, एक होटल में रहते हैं, घूम के वापस आ जाते हैं. तो उदयपुर में 50 नए लोकेशन हैं. मैं 3 लाख बोल रहा हूँ ना, वो तो एकदम छोटा सा आंकड़ा बोल रहा हूँ. वर्ल्ड में 3 लाख से कहीं ज़्यादा डेस्टिनेशन हैं अवेलेबल एंड रोज नए डेस्टिनेशन ओपन हो रहे हैं. क्योंकि जैसे जैसे हर एक कंट्री को समझ में आ रहा है कि ट्रैवल से कुछ ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना खाली थोड़ा सा डेवलपमेंट कर दो, टूरिस्ट को फैसिलिटी दे दो, सर्विस प्रोवाइड कर दो, लोग आ जाएंगे. क्योंकि बाकी तो जोग्राफिकल ब्यूटी है ही. तो बहुत सारे नए कंट्रीज भी एंटर हो रहे हैं अब इस रेस में, ट्रैवल वाले रेस में, क्योंकि वो भी ईजी है एंड फॉरेन अर्निंग्स हैं. तो हर एक कंट्री के लिए सर्वाइव करने के लिए फॉरेन अर्निंग्स एक सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल रिसोर्स है. तो ये ट्रैवल प्रोवाइड करता है बहुत इजीली. क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे उससे खुशी मिलती है. आप जो बोलोगे पैसा दे दूंगा, मुझे ट्रैवल कराओ.
सो यहाँ पर हैप्पी अर्निंग है, आप जिससे पैसा लेते हो ना उसको खुशी बांट रहे हो आप। तो इस हिसाब से भी अगर देखो तो ये वंडरफुल इंडस्ट्री है। थैंक यू सो मच। Thank you. Yeah. Good evening, everybody. Myself, Kirti Thakur. वैसे इंट्रोडक्शन तो सर ने दे ही दिया है। मैं टूरिज़्म में जो बातें करनी है मुझे, वो ये है कि आज के यूथ जो टूरिज़्म में आते हैं और थोड़े समय के बाद वो ऊब जाते हैं या वो जगह छोड़ के कुछ अलग करना चाहते हैं, ये कंप्लेन मेरी ट्रैवल एजेंट्स के साथ कई बार डिस्कशन हुए कि भाई मैं यंगस्टर्स को आप कहते हो तो मैं रखता हूँ, लेकिन वो 6-7 महीने के बाद वो किसी और जॉब में चले जाते हैं, या मैं ट्रेनिंग देता हूँ वो तैयार हो के कोई और ट्रैवल एजेंसी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंप्लेन है ट्रैवल एजेंटों की, क्योंकि स्टाफ नहीं मिल रहा। आज की डेट में भी आप कोई भी ट्रैवल एजेंट को पूछो कि भाई तुम्हारे पास स्टाफ है, तो वो हमेशा स्टाफ के लिए रोता ही होगा। क्यों? इम्पोर्टेंट है सबके लिए। सबके लिए, क्योंकि आजकल यूथ का एक मेनिया है। मेरा एक्सपीरियंस टूरिज़्म कॉरपोरेशन से था। मेरे टूरिज़्म कॉरपोरेशन में जब सीनियर लोग सब रिटायर होने लगे तो वी हैड ट्रेनीज चिल्ड्रन, ट्रेनीज बच्चों को हम लाए कि भाई जिसने होटल मैनेजमेंट किया हो या मैनेजमेंट कोर्स किया हो या ट्रैवल में गाइडिंग का कोर्स किया हो, ऐसे बच्चों को हमने डेप्यूट किए। वो लोग सिर्फ 11 महीने उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लिए गए और उनको पता था कि 11 महीने के बाद मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप करते थे। और उसकी वजह से 11 महीने के बाद ऐसा होता था कि वो बच्चे ट्रैवल इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी कोई और जगह लग जाते थे। और एज अ रिज़ल्ट टूरिज़्म कॉरपोरेशन जैसी गवर्नमेंट बॉडी में भी स्टाफ की कमी महसूस होती थी। तो ये जो कंप्लेन है, वो कंप्लेन सॉल्व करना अपने यूथ के हाथ में है। और ये एक ट्रैवल एजेंट की या एक कॉरपोरेशन की बात नहीं है, ये एनी ट्रैवल एजेंट इन ऑल ओवर इंडिया आप देख लो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, बॉम्बे हो, कोई भी जगह पे ट्रैवल एजेंट्स की हमेशा, मैं तो आईटो साटे वगैरह में जाता हूँ तो कन्वेंशंस में, तो मुझे हमेशा स्टाफ की यही कंप्लेन आती थी। जो ट्रैवल एजेंट्स मिलते थे हम लोग, तो वो हमेशा ऐसा ही बोलते थे कि भाई कोई अच्छे बच्चे हो तो हमें भेज दो यार, स्टाफ बिल्कुल नहीं है काम करने के लिए। और जब ऐसे कन्वेंशन होते हैं या मीटिंग होती है तो बहुत सारे लोग सुनने आ जाते हैं, लेकिन उसमें से हार्डली 10% वो ट्रैवल इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करते हैं कि उनको पता चले कि भाई ट्रैवल एजेंसी में जो काम है वो एक अलग प्रकार का काम है। रेगुलर रूटीन काम की बजाय आपको एक एंटरटेनमेंट के साथ आपको ये काम हंसते खेलते करना है।
इसमें कोई ऑफिशियल बर्डन नहीं होता है। आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए आप खुद एक मोहरा बनते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कोई भी आदमी ट्रैवल करता है तो एंटरटेनमेंट के लिए करता है, उसको खुश होना है, उसको बाहर घूमना है, उसे कुछ नॉलेज देना है। देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रैवल फॉर्म्स विच, जैसे कि नेचर में जाना है, किसी को फॉरेन कंट्रीज़ में मीट करना है, किसी को एडवेंचर का शौक़ है, किसी को स्पोर्ट्स का ट्रैवल शौक़ है। तो ये अलग अलग किस्म के लोग आपके पास आते हैं और आपको हमेशा एक वेरिएशन वाला काम मिलता है। तो इसमें जो हम सोचते हैं कि भाई इसमें ऊब जाने वाली बात है कि भाई एक ही स्टीरियोटाइप काम करना है, तो वैसा काम जो होता है वो, जैसे कि हमने टिकटिंग का काम लिया, तो वो एक मोनोटोनस काम होता है कि भाई टिकटिंग में आप कुछ नहीं करते, सिर्फ मेल पे उसको टिकट इशू करके आप फ्री हो जाते हो। लेकिन जो गाइडिंग का काम है या मैनेजर का काम है, जो संभालने का काम है, टूरिस्ट जब आता है तो उसको वेलकम करके उसको पैकेज ऑफर करना, और ये सब जो क्रिएटिव काम है, उसमें मैं नहीं मानता कि आप लोग ऊब जा सके या आपको कंटाला आने लगे कि भाई ये तो एक ही स्टीरियोटाइप काम करना है। ऐसा उसमें नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, और उसकी वजह से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं एट फर्स्ट स्टेज। और वेरिएशंस मैंने भी जब 79 में मैंने ज्वाइन किया था टूरिज़्म आफ्टर डूइंग माय होटल मैनेजमेंट, तो उस टाइम भी मेरे को पहली पोस्टिंग मेरी काजीरंगा में हुई थी, आसाम। तो अगर मैं गुजराती होते हुए भी वहाँ गया था, मेरे पेरेंट्स ने मना किया था कि इतनी दूर कहाँ तू जॉब करने जाएगा। मैंने बोला नहीं पापा, ये गवर्नमेंट की जॉब है, मैं जाऊँगा, क्योंकि काजीरंगा जाना मेरे लिए एक एडवेंचर था। फिर हाँ, 3 महीने के बाद मेरी ट्रांसफ़र कर दी उन्होंने सासनगीर में, क्योंकि सासनगीर में एक यूनिट खुला, तो उन्होंने ऑप्शन मांगा, तो मैंने फिल किया, तो आई वॉज ट्रांसफर टू सासनगीर। तो ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती है, आपको ग्रैब करना चाहिए, आना चाहिए। और मेरे हिसाब से मेरी शुरुआत की जो कैरियर थी वो गाइडिंग से शुरू हुई, क्योंकि होटल मैनेजमेंट करने के बाद मेरे को जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो सीधी मेरी काजीरंगा में हुई। जो मुझे अपॉइंटमेंट मिली वहाँ लॉबी मैनेजर की पोस्ट पे मुझे अपॉइंटमेंट मिली। तो मेरा काम क्या होता था कि टूरिस्ट आए उनको वेलकम करना, उनको जो राइनो सेंचुरी का पैकेज है वो उनको घुमा के लाना और राइनो के बारे में उनको बताना। तो ये मेरी गाइडिंग की कैरियर, लॉबी मैनेजर होते हुए भी मुझे ये काम करना पड़ता था। उस समय मैं ऐसा नहीं कह सकता था कि सर आई एम लॉबी मैनेजर, हाउ कैन आई गो एज अ गाइड। लेकिन मुझे भी मज़ा आता था कि हर दफ़ा जीप में बैठ के राइनो देखने को मिलते थे, एंड इट वॉज ए थ्रिल एंड एडवेंचर फॉर अस। तो एवरीवेयर देयर इज ए एडवेंचर एट एवरी स्टेप इन ट्रैवल इंडस्ट्री। यू विल फाइंड समथिंग न्यू, और उसको एडप्ट करना वो एक अपने में एक स्किल डेवलप करने वाली बात है। और वो स्किल ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें आपको बेसिकली बताई जाती है कि ये स्किल है। मैंने जब होटल मैनेजमेंट किया तब मुझे नहीं कहा था कि भाई राइनो सेंचुरी में काम करना पड़ेगा।
लेकिन मैंने किया, फिर लायन सेंचुरी में भी काम किया, सासनगीर में। और सासनगीर का तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा हुआ कि जब खुशबू गुजरात की कैंपेन शुरू हुआ तो लायन का लोकेशंस जो आइडेंटिफाई कर रहे थे वो काम मेरे सर पे डाला गया, क्योंकि सबको पता था कि कीर्ति हैज़ बीन देयर इन सेंचुरी फॉर लॉन्ग टाइम, so he will be able to locate lions very easily। तो वो एक्सपीरियंस मेरा कितने सालों बाद 2013 में मेरा काम आया। हाँ, बॉलीवुड टूरिज्म। अच्छा, बॉलीवुड टूरिज्म का भी मेरा जो तजुर्बा है वो एक इंटरेस्टिंग है। आपने शायद पीकू फिल्म देखी होगी, अमिताभ बच्चन और दीपिका एंड इरफान। दैट पीकू वाज शॉट इन गुजरात। सबको लगेगा कि वो लोकेशन तो यहाँ के है नहीं कोई, तो गुजरात में शूट कैसे किया? तो वो पीकू वाज शॉट इन गुजरात फॉर 15 days बिकॉज द एक्सपीरियंस द डायरेक्टर हैड वाज वंडरफुल ड्यूरिंग खुशबू गुजरात की कैंपेन। उस टाइम जो लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किए थे, और वो लोकेशन एडवाइज़र के तौर पे मैं काम करता था, तो उसकी वजह से पीकू का भी लोकेशंस जब आइडेंटिफाई करने का आया तो डायरेक्टर अप्रोच्ड मी टू हैव कोऑर्डिनेशन फॉर द लोकेशंस। और वो लोकेशंस और कुछ नहीं था, वो जो हाईवे थे, जितने भी हाईवे शॉट्स हैं वो सब गुजरात के हैं। और वो साणंद से लेके अपने मालवण तक का जो ट्रैक है वो ट्रैक पे पूरा शूट हुआ था। अमिताभ बच्चन की कुर्सी बोलो कार के ऊपर उल्टी, कार के ऊपर उल्टी, वो साणंद हाईवे है। साणंद हाईवे। तो और दूसरा जो इंटरेस्टिंग जो कैप्चरिंग था वो था कि उसको इलाहाबाद बताया था और रिवर फ्रंट पे दोनों बात कर रहे हैं। वो स्टेप मैंने गांधी आश्रम में शूट करवाया। गांधी आश्रम का बैक साइड, गांधी आश्रम बैक साइड पे स्टेप्स है, आप कभी जाओ तो देख सकते हो। तो वहाँ स्टेप पे लाइटिंग करके मैंने वहाँ इलाहाबाद बता दिया था। तो ये बॉलीवुड की जो टिप्स है वो मेरे लिए काम आई, और उसकी वजह से मैंने काफ़ी ऐसी एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स वगैरह में लोकेशन एडवाइज़र के तौर पे भी मैंने काम किया। और वो एक्सपीरियंस मुझे काम लगा खुशबू गुजरात की कैंपेन में भी काम आया वो चीज़, क्योंकि हमने करीबन 21 लोकेशंस पे हमने फिल्म बनाई है। खुशबू गुजरात की शूट हुआ उसमें द्वारका, सोमनाथ, सासनगीर, कच्छ। कच्छ में वी ट्रैवल्ड ट्वाइस बिकॉज ऑफ द सीज़न। हमको फर्स्ट टाइम गए तब वाइट रन नहीं मिला था, तो वो सेकेंड टाइम हमें वाइट रन में जाके फिर से शूट करना पड़ा। तो देयर वी हैड एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर बच्चन फॉर ट्वाइस इन कच्छ, एंड रेस्ट ऑफ द एरियाज वी हैड a long tour of about 21 days in Gujarat. Or he was quite kind enough to give us so much of time. Even Saputara he came, he went all the way to Ahmedabad, Saputara, Sasangir, Ambaji, Sidhpur, all these small Vadnagar, all these locations have been covered in that same film, which was an advertisement campaign done by Gujarat Tourism. So this is an experience which travel has given me. तो इससे कई लोग प्रभावित होते हैं कि भाई ये तो अच्छा काम है, आपको घूमने मिलता है, सब देखने मिलता है, वो भी अमिताभ बच्चन के साथ, और वो भी बच्चन सर के साथ। तो some people were jealous also, some people were happy about it, but overall ये जो एक्सपीरियंस है वो ट्रैवल की वजह से मिला। तो आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस अगर
आपकी लाइफ में लाना है या आपको ऐसा इस दौर से गुजरना है, तो यू हैव टू एडप्ट अ ट्रैवल इंडस्ट्री एज अ मेन लाइन. Try to get in touch with some of the good travel colleges or institutions where you can be trained well, and then opt for a good job opportunities. There are ample of job opportunities in travel industry. सिर्फ ट्रैवल एजेंसी में काम है ऐसा नहीं है, होटल्स में भी इतना ही काम है, और ट्रांसपोर्ट विंग में भी इतना ही काम है. आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होते हैं ट्रैवल के अंदर भी, ट्रैवल एजेंसी के अंदर भी. सम ट्रैवल एजेंसी दे डू ओनली टिकटिंग एंड होटल्स बुकिंग. सम पीपल दे डू पैकेजिंग वेयर दे टेक एंटायर package care. Some people, they do only transport wings. They have a fleet of transport and they share with the transport with the other travel agents. So that is also a very lucrative. Those who have little fund, there are ample of banks, those who give you loans for transport. And on that basis, you can start your own transport fleet agency. And I hope there are ample of banks, those who are eager to give, loans for such transport projects. Because day by day, most of the packages are run on, transport fleets are run by hiring from the loans. Bank loans gives and they get the vehicle and they operate. And then they resubmit the amount which has been taken as a loan. But it is a very lucrative business. As a business also, individual entrepreneur can definitely look into it. और particularly travel agency में ही काम इतना है कि होटल के बारे में मैं बात करता ही नहीं हूँ कि होटल इंडस्ट्री में भी इतना ही काम है. A person who joins as a waiter can grow up to F&B manager. A person who has joined as a receptionist or a lobby manager can go up to general manager of the hotel. These are the hierarchies, different hierarchies which one can avail in this industry. और सबसे अच्छी बात ये है, जो अंदर की बात है, जितनी जॉब आप बदलोगे उतनी आपकी हायरार्की बढ़ेगी. ये इंडस्ट्री एक ही इंडस्ट्री ऐसी है. यहाँ पे आप ट्रैवल मैनेजर हो, आगे आप डेप्यूटी ट्रैवल मैनेजर बनोगे, आगे कूदे तो रीजनल मैनेजर बनोगे, फिर कंट्री मैनेजर, फिर साउथ ईस्ट एशियन जनरल मैनेजर. इस तरह से दिस इज द ओनली जॉब वेयर व्हेन यू शिफ्ट द जॉब you are promoted or your hierarchy goes up. ये एक ही इंडस्ट्री ऐसा है. बाकी कोई इंडस्ट्री में इतना जल्दी प्रमोशन नहीं होता है जितना ट्रैवल इंडस्ट्री में होता है. सो ये एक पर्सनल लुक्रेटिव टिप दे रहा हूँ कि ट्रैवल इंडस्ट्री में आने के लिए बच्चों को अगर समझाना है तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है. क्योंकि आजकल के बच्चे वही सोचते हैं कि मेरा ग्रोथ कैसे होगा, समझे. वो सोचते हैं कि मैं यार यहाँ तो टेबल पे बिठा दिया है, 10 लोग पूछने आते हैं, उसमें से एक मैच्योर होता है, बाकी 8 तो चले जाते हैं, तो इसमें मेरा क्या ग्रोथ होगा. बट दिस एक्सपीरियंस will make him grow further in the
travel industry. बराबर? I hope you have understood my point कि ट्रैवल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना बुरी बात नहीं है या गलत बात नहीं है. You should try and rope in yourself into this sort of an industry where there is a next revolution coming. आप देखो कि आपके सामने ही within 5 to 6 years स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टूरिज्म ग्रोथ जो है वहाँ सबसे पहले 100 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को ट्रेनिंग दी थी मैंने. उसमें से वो 100 बच्चे धीरे धीरे ग्रोथ होते होते नाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर कैंपस. दैट 100 चिल्ड्रन सब गाइड बन गए, सीनियर गाइड, लोकल ट्राइबल्स, एंड दे हैड ओनली 12th पास, 12वीं कक्षा पास की थी. वहाँ एक मैंने सबसे अच्छी चीज़ देखी वो ये थी कि वहाँ ट्राइबल्स में लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती है लड़कों से. द गर्ल्स वेर मोर एजुकेटेड देन बॉयज़. बॉयज़ जो आए थे वो 12th पास से और लड़कियां थी वो ग्रेजुएट करके आई थी. ग्रेजुएशन बच्चे वहाँ लगे. आज दे आर अर्निंग एम्पल ऑफ मनी, यानी सस्टेनेबल मनी दे आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो. एंड यू कैन सी योर सेल्फ, यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. आपके नज़र के सामने ये डेवलप हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि टूरिज़्म डेवलप नहीं हुआ है. टूरिज़्म ग्रोथ इज़ देयर और उसका एक रेवुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है. आज या कल ही मैंने पेपर में पढ़ा कि देयर इज़ अ 7 days फेस्टिवल ऑफ ओनली सेलिब्रेटिंग राम का कुछ स्टेच्यू का 7 days सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया में होगा. Dholera is one of the latest news which you must have gone through, because Dholera is coming up in a big way, where international travel is. See, even you can after joining this, you can join the airline fleets, ground handling manager, airline fleets, ticketing. All these are different venues where you can put your inputs and develop yourself into a travel agency, into a travel trade. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Kirti sir. I think if you really spend time with sir, because of the amount, and the good thing about him is he's seen the entire Gujarat tourism evolve into something which we were always considered as after Rajasthan, after Kerala, after Madhya Pradesh. Literally, I mean, people used to wonder what we don't have, right? From wildlife to beaches to everything. But I think the kind of way Gujarat tourism has shaped up, he's a living legend in the sense that he's a knowledge pool. Always a pleasure to hear you, sir. What we'll do is we'll quickly move to Keyur Bhai. Is about 10-15 minutes, maybe, sir, and then we'll take questions after that. Yeah, I think you have. Sure, you can come here. Meanwhile, we'll take about 5-7 questions at the end. Everything which has not been covered, if you want to ask that, feel free, and I'll come to you after that. Yes, Keyur Bhai. Sure. Okay, Ajay Bhai, પછી રહેજો ને વિડિયો છે. લેપટોપમાં છે ઓલરેડી. हाँ तो यहाँ से. That's okay. We'll show it towards the end. हेलो કેમ છો? સુઈ ગયા? જાઓ. ઓકે. સો માય સેલ્ફ કેયુર પંચાલ. મારા માટે આજનો દિવસ એટલા માટે ખાસ છે because I was the student of Snowflakes Travel and Tourism College. Later on I joined Kirti Bhai, અને કીર્તિ સર સાથે એટલો
જૂનો સંબંધ મારા માટે કે એમના ઘરે જઈને એ મને બતાવે કે બેટા હવે આવું કરવાનું હોય આવું કરવાનું હોય, એટલે આ પ્રોસેસથી અહીંયા આવાય, આટલું કીધું તમને બરાબર. देखिए आज के दौर पे आई थिंक हिंदी वॉज द बेटर लैंग्वेज फॉर यू, राइट, है ना. ओके आज का जो टॉपिक था हमारा व्हाट वाज द रिवॉल्यूशन इन करियर रिवॉल्यूशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है. उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें. उससे बेटर है कि मैं अपनी जर्नी बता दूंगा तो आपको थ्रू आउट द क्या होता है प्रोसेस, बिकॉज जो ग्लैमर लगता है वो पर्दे के पीछे जब जाते हैं तब वो ग्लैमर नहीं लगता, ठीक है. सो सच्चाई से रूबरू होना आपके लिए ज़रूरी है. और सेकंड थिंग इज़ कि अभी जिस हिसाब से यू नो करियर ऑप्शंस को देखा जाता है आज के दौर पे, देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू जस्ट थिंक ऑफ आईटी, કોમ્પ્યુટર, એન્જિનિયરિંગ શું કરે છે, પછી આવ્યું સીએ, બરાબર. સો વેન યુ આર ડુઈંગ નથિંગ દેન યુ કેન ડુ સીએ. एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज देयर, बट सी ए इज़ द रेन कोट बेसिकली, जो आप कभी भी पहन सकते हो. अगर घर वाले कोई भी मेहमान आए तो रेनकोट पहन लो. क्या कर रहे हो, बोले सी ए चल रहा है, ठीक है, कितने साल से आई डोंट नो. પછી जब ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती है सो फिर कन्विंसिंग शुरू होती है. अभी तक सी ए कर रहे हो, आमा आવું જ હોય. ओके सो बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिलेनिया, आई थिंक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सारे 90s के बाद के लोग यहाँ पर बैठे हो. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा आवाज़ देना ताकि मुझे पता चले कि हम लोग शोक सभा में नहीं आए हैं, ठीक है. ये सभा थोड़ी ऐसे नहीं हो रही, मेडिटेशन सेंटर नहीं हो रहा अभी, ठीक है. और टूरिज्म के लिए आए हो तो बोलना तो सीखना ही पड़ेगा, तो ये उसका फर्स्ट रूल है. सो व्हेन आई जॉइंड, आई वाज द स्टूडेंट ऑफ एच एल कॉलेज का नाम शायद आपको पता होगा. उसका मेरिट मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझे रिस्पेक्ट से देख सकते हो, ठीक है. देन हुआ ये कि 6 महीने एच एल किया. उसके बाद लगा कि नहीं यार, मैं एक जगह पर टिक कर तो नहीं बैठ सकता, वो प्रॉब्लम है. I did my 12th till the, I mean, पूरा हायर सेकेंडरी एंड एवरीथिंग इन गुजराती मीडियम. सो इंग्लिश जब भी बोली जाती है तब ऐसा लगता था कि भाई कुछ हो रहा है, वी डोंट नो, लेकिन अच्छा लग रहा है. स्पेशली व्हेन प्रोफेसर इज यू नो मेल्स आर देयर, सो ठीक है कुछ अच्छा चल रहा है. लेकिन जब बात आती है सीरियसनेस होने की, सो आई वेंट टू द एक्सपो, एजुकेशन एक्सपो. आई मेट सर, रत्नदीप जी वॉज देयर एंड मैं कहा कि अब थोड़ा चेंज करना है. सर बोले क्या बनना है. सर मुझे वो नहीं पता, टूर का मुझे ट्रैवल करना है, दैट सेट ख़त्म हो गई. सो उन्होंने कहा कि ओके चलो ट्रैवल करना है तो ज्वाइन द कोर्स. मैंने कहा अभी तो क्लास चल रहा है एच एल कॉलेज में, बिकॉज आई वॉज द ओनली सिलेक्टेड पर्सन फ्रॉम माई एंटायर स्कूल. सो समझो कि 2000 लोगों का आपका स्कूल है, उसमें से 200-300 आपके क्लास वाले 12th वाले हो गए. एंड यू आर जस्ट, यू गॉट द एडमिशन, बिकॉज दैट टाइम 9 ईयर का सबसे लोएस्ट एडमिशन वहाँ हुआ था, जो आपका रिजल्ट वगैरह आता. अभी 12th वाले का आया, ठीक है. सो उस टाइम आपका एक ईगो भी होता है कि चलो एच एल पे कर रहे हैं, सेप्ट के बाजू में था एच एल, शायद सबको पता ही होगा ना एच एल क्या है, तो एच एल में आपको मिला है. लेकिन फिर कहा नहीं, छोड़ना है तो छोड़ना है भाई. आई जॉइन द स्नोफ्लेक्स. यहाँ पर मुझे बात सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म पे लगी वो ये है कि क्या होता है ना कि हम लोग गाई में रहते हैं, फटाफट करना है, सब कुछ फटाफट करना है, समझ रहे हो. और वहाँ पर क्या होता है कि आप मिस करते हो. आप 2 घंटे रखड़े, ગુજરાતીમાં રખડવું કહેવાય, બરાબર, 2 કલાક ભમ્યા પણ જગ્યા ના મળી બેસવાની, કારણ કે જેવા આપણે ઊભા થઈએ સીટ બીજું લઈ લે, બરાબર. तो ये चीज़ आप जब करियर पे जाते हो तब भी होती है. सो पहले तो मज़ा आया, चलो अच्छा पढ़ाई है, फोकस है, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आता है. आई वॉज वेरी मच नो इन लव विथ हिस्ट्री, तो मुझे मज़ा आया. देन फिर सोचा कि इंटर्नशिप करते हैं. आई ज्वाइन द इंटर्नशिप पार्ट. आई थिंक लास्ट ऑडियंस इज देयर. एक्सक्यूज मी सर, लास्ट वाले यही है ना? हेलो, थोड़ी आवाज़, मज़ा आएगा. ओके सो जब ये ज्वाइन किया तो सर ने दिया था उस टाइम पर कि ये 100 लोगों को कॉल करना है. सही से 100 लोग, और वो भी एक दिन में. मैंने हाँ 100 लोग डेली मिलेंगे. ओके
1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन, 4th डे में उनको मिला, सर कितने दिन करना है ये? ही सेड बेटा जस्ट 6 months. आर यू सीरियस? मैं कहा 6 months, ओके. पर उन्होंने ये कहा कि देखो, द वे यू टेक द थिंग विल बिहेव एग्जैक्ट इन द सेम मैनर. आप किसी चीज़ को कैसे लेते हो, समझ रहे हो? जैसे अभी आप अपने शौक से आए हो, तो आप यहाँ खुल करके बैठे हो, वहीं आप एक्सीडेंटली EMA में आ गए और यहाँ बैठ गए, और उसका आपका बिहेवियर पैटर्न अलग होगा. आई एम द रिसर्चर ऑफ न्यूरोफिनोमेनोलॉजी. वर्ड लंबा है तो बाद में बताऊंगा कभी, लेकिन उसमें वही है कि आपका माइंड जो होता है ना, वही एक डिसाइड करता है. आई सेड नहीं, आई वॉन्ट टू डू दैट. 3 महीने के बाद आई यूज टू कॉल अप्रोक्स 300 पीपल अ डे. 6 महीने आते आते 500 पीपल अ डे, और 500 लोगों को बात करके ऐसा नहीं कहना कैम छो, मजा में, जय श्री कृष्ण, आओ जो, ऐसा नहीं कहना. बात करनी है. अगर पैकेज है तो पैकेज के बारे में समझाओ, अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ बता दो कि एक इवेंट हो रहा है, आपको आना है, दैट्स इट. फोन करके सबसे पहला जब आता है, तमने मारो नंबर कौन है आप कह. सो दिस इज द वे यू लर्न द थिंग एंड यू एक्सप्लोर कि नहीं चलो समझ रहे कि किससे कैसे बात करनी है. गेस्ट अगर बहुत ज़्यादा ताव पे चढ़ा हुआ है तो कब इसको शांत करना है, यस सर, नो सर, आप सही है सर. रिसोर्ट में वही होता है, समझ लो. लेकिन ये जब आप सीखते हो तो एज एन इंडिविजुअल यू ग्रो. दैट इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू. ठीक है. उसके बाद ये हुआ, करीबन 6 महीना ये किया. उसके बाद आई गॉट द चांस टू वर्क इन इंडियाज टॉप 5 कंपनीज, वन ऑफ द, जिसके लोग ड्रीम देखते हैं. आई थिंक सर इज़ वेरी मच अवेयर अबाउट इट. ठीक है. उन्होंने मुझे फिर इंटर्नशिप दिलाई. क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड पे आप सिलेक्ट हो जाते हो, क्या करोगे, आपने इतनी मेहनत कर ली है, मेहनत तो थोड़ी ना खाली जाएगी. वो किया, वहाँ गए, अरे यार इतनी बड़ी कंपनी है, घर वाले खुश है. ये सेकेंड डे, फर्स्ट डे वॉज माई एक्सपीरियंस वॉज, मैंने कॉल लिया. ठीक है. कॉल वॉज फ्रॉम जामनगर. माई मैनेजर वॉज देयर, द अदर एम्प्लॉय वॉज देयर, और उन्होंने मुझे कॉल किया, इसको बोल दे कि पासपोर्ट आज मिल जाएगा, तो आपकी फ़्लाइट है यार, टेंशन मत लो. मैंने कहा कि सर पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, आपकी फ़्लाइट है आज. मैंने फ़ोन रख दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट द 6 month एक्सपीरियंस के बाद का. ठीक है. तो ये day 1 नहीं है. तो मैंने कहा ठीक है. माय मैनेजर केम टू मी एंड सेड, हाउ डिड यू प्रॉमिस दैट वन, कि पासपोर्ट आज ही मिल जाएगा. मैंने कहा यू सेड सो. लेकिन बोले पासपोर्ट अभी तेरी जिम्मेवारी, अगर नहीं मिलता तो उसकी आज रात की फ्लाइट है. बोले मैं क्या कर सकता हूँ. लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान से धीरे धीरे करते करते आपको गढ़ती है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई एंटायर ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग, आई वॉज अर्निंग प्रिटी वेल. लेकिन फिर अगेन जब आप बैक ऑफिस पे बहुत साल काम कर लिया, आपको लगा कि नहीं अभी ट्रैवल करना है. So I came to Kirti sir, okay, so I want to do something else. बोले गाइड बन जा. ठीक है. अभी गाइड का इज्जत क्या होता है आप लोगों के दिमाग में, वो मुझे पता है. ठीक है. और इंडियंस के दिमाग में मोर और लेस. बट यू डोंट नो कि गाइड जो है वो कभी कभी दिन के 8-10 हज़ार रुपये लेते हैं. वो आप 100-200 रुपये निकल जाते हो, गुजराती बनते हो, वो आपका प्रॉब्लम है. बाहर वाले देते हैं. ठीक है. कंपनीज भी देती है. सो समटाइम्स गाइड कैन अर्न मोर देन अ टूर मैनेजर. वो बेचारा बंदा 50,000 तो कमा रहा है या 30,000 कमा रहा है महीने का. वो आप गए, आपने एक आध हफ्ता काम किया, आप घूमे, गेस्ट घूमे, मज़ा नहीं लाई. क्या वो मुन्ना भाई वाला डालोगे ना, કેરમ રમવાનું, જ્યુસ પીવાનું, પછી હા. તો આ મજાની લાઈફ માટે અમુક સમય તમારે ફોકસલી ઇન્વેસ્ટ કરવો પડે. आई शुडंट लाई टू यू. बराबर. सेकंड थिंग कि जब शुरू किया तो घर वाले बोले इतनी बड़ी कंपनी को तू छोड़ रहा है, तू पागल हो गया. मैंने कहा आई वॉन्ट टू क्विट. छोड़ना है तो छोड़ना है. HL भी ऐसे ही छोड़ी थी. अगेन जो होगा वो देखा जाएगा. सो आई डिड दैट. सर को पूछा सर क्या करना है, बोले हेरिटेज वॉक करो. अहमदाबाद में हेरिटेज वॉक, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन दैट. हेरिटेज वॉक कितनों ने लिए, शाबाश. जिन्होंने नहीं लिए वो अहमदाबाद छोड़ के चले जाए. हाँ.
650 साल पुराने सिटी में अगर आप रह रहे हो, ट्रैवल के लिए आए हो और आपने हेरिटेज वॉक नहीं की है, तो कल जाके सबसे पहले वही काम करो, ठीक है? तो एटलीस्ट आपको मिलेगा कि यहाँ से कुछ तो सीखे। इंडियाज, हाँ चलो, इंडियाज नंबर 1, इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। सो आपको प्राउड होना चाहिए अपने आप पे कि हमने हेरिटेज वॉक नहीं लिया। सो देन अगेन ये हुआ, मैंने कहा सर इसका क्या मिलता है? कीर्ति साहब बोले फिर वो तो फ्री में करवानी है। सो आई सेड ओके, आई गॉट वन ऑफ द गुड मेंटर, नीरव करके गाइड है पुराने, उन्होंने ही मुझे मिलवाया। आई डिड दैट 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, लेकिन बिकॉज मेरे पास वो ट्रैवल बैकग्राउंड का नॉलेज था, उससे मुझे एक आइडिया आ गया कि भाई साहब कितने साल तक करना ही है। बोले नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। आई वेंट अप्रोच टू द बिग कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है? ये आपको कॉन्फिडेंस आता है। जो लोकल गाइड आज बन जाएगा उसको नहीं आएगा, वो क्लियर लिख लो क्या चीज़ है। वो डिफ्रेंशिएशन मैं एक छोटे से शब्दों में बता देता हूँ। लोकल गाइड, मान लो आप राजस्थान गए, उसके पास गया, उदयपुर के पास आया, उदयपुर ट्रैवल किया ऑलमोस्ट किसी ने, ओके चलो अच्छे खासे लोग गए, उदयपुर गए। उसके बाद आपने उदयपुर पे वो जो गाइड है वो क्या जानता है? मैक्सिमम लैंग्वेज जो 5 साल के अंदर अंदर टेक्नोलॉजी खा जाएगी, ठीक है? बिकॉज रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन दिखना भी चाहिए, आपके दिमाग में भी रिवॉल्यूशन जाना चाहिए कि रिवॉल्यूशन आ क्या रहा है, समझ रहे हो? सो वो 5 साल में आप एक डिवाइस आएगा, आपको बता देगा, आप गुजराती में बोलो, वो जर्मन में भी ट्रांसलेट कर लेगा, तो आपकी जॉब गई। सो आपने जितनों ने भी ये 16,000 का फ्रेंच वाला कोर्स किया है, माय गुड विशेस टू यू, ठीक है? देन उसके बाद ये होता है कि उसको मैक्सिमम पता है कि भाई ये गुजरात का ये पैलेस इसमें बनाया था, वो तो टैप रिकॉर्डर आपको पता है ना? वो शुरू हो जाते हैं, आपको आप नहीं भी सुन रहे तो कि वो तो चालू ही रहेगा। लेकिन जब आप ट्रैवल बैकग्राउंड से होते हो, यू नो द पैटर्न ऑफ अ गेस्ट, आपका दिमाग 2 जगह पे काम करना शुरू कर लेता है। यहाँ पर अगर आप आए हो तो आई विल मेक श्योर कि इस वी हैव आई थिंक 8 बजे तक चलेगा ना मैक्सिमम, है ना? ओके परफेक्ट। सो यहाँ पर आप आए हो तो आई विल सी कि आप ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए। सो एक चीज़ ये होती है कि अगर कोई अमेरिका से आया है और आपको अमेरिका के बारे में A to Z पता है बॉस, अगर वो कौन से प्रोविंस से आया है, उसमें क्या फेमस है, तो वो आपको और उसको एक करता है, जो वहाँ पर ज़्यादातर नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। उस बेचारे को उदयपुर से बाहर क्या है वो उसको भी नहीं पता, ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर और वो गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है? लेकिन वो मेरे पास तो था, और वहाँ से मेरे पास ये हुआ कि काम करते 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 इतना ग्रिप आने लगा कि आई विल टेक अ 1 ट्रिप जहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया आएगा। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ दिल्ली कि एक ट्रिप है। बोले कौन है? 2 लड़के हैं, 2 रिसर्चर हैं, एंड दे आर रिसर्चिंग ऑन समथिंग, और उन्होंने कहा कि मुझे एक गाइड चाहिए, लेकिन वी फील के यू शुड बी देयर। ओके, डे 1 10 दिन का ट्रिप, हेलो ऑल आर देयर, 10 दिन का ट्रिप, 12 प्लेसेस, एक इनोवा, आगे मैं बैठूंगा, पीछे वो 2 लोग बैठेंगे, और मेरा पर डे का सेट है, खत्म बात, ठीक है? धौलावीरा गए, धौलावीरा पे उन्होंने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, आपको दिखाना था धौलावीरा, तो दिखा रहे हैं धौलावीरा। बोले आई हैव कम हियर टू रिसर्च ऑन महाभारता। ही वॉज फ्रॉम पोलैंड। सो पोलैंड गवर्नमेंट ने ग्रांट पास की कि महाभारत को हमें पॉलिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो यू शुड ट्रैवल ऑल द प्लेसेस। तो फ्रॉम गांधार जो अपना अफगानिस्तान वाला है, वो वहाँ से लेकर के पाकिस्तान कवर करके वो लास्ट लोकेशन उसका गुजरात था। सो आई सेड ओके। अभी यहाँ पर थोड़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए बेसिक, ठीक है? रात को मैं मिलते हैं, रात को मिले, मैंने मैप निकाला। आई ऑलवेज कीप मैप्स एंड एवरीथिंग विथ मी। अगर आप जो हो आप अपने पास रखना चाहिए, शिवाय आप कट वो मत रखना कभी, वो डेंजरस चीज़ है, ठीक है? तो हम लोग रात को बैठे, मैंने कहा क्या करना है? बोले महाभारत पर रिसर्च है और मुझे कृष्णा के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो बतानी है, ख़त्म हो गई बात। तो मैंने कहा सर
आपका अगर कृष्णा की अगर पायल भी गिर गई है ना, वो नुपुर पहनते थे, ठीक है, वो भी हम नहीं छोड़ेंगे गुजरात में. आई वॉज टोल्ड 10 प्लेसेस बताना है. बाय एंड ऑफ द ट्रिप वी कवर ऑलमोस्ट 45 प्लेसेस. और 45 प्लेसेस जब उसने कवर किए तब लास्ट डे ही वॉज क्राइंग, बिकॉज 10 डेज का भी मुझे उतना ही मिलने वाला था, 45 प्लेसेस का भी उतना ही मिलने वाला था. बट आई ऑलवेज वर्क. इसलिए मैं कहता हूँ प्रॉमिस बहुत कम करो, डिलीवरी हमेशा ज़्यादा दो. दैट्स द मेन थिंग जो आपको सीखनी है. दैट्स इट. अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, खत्म हो गई बात. The very next month I got a call from Poland government that we are very much happy with our researcher and we want to work with you, and these guys are right now working with me and we are working on a student exchange program with Gujarat and the Poland. So ये success ratio तभी आता है जब आप तय करते हो कि नहीं मुझे ये किट करना है, देना है. तो जैसे गुजराती में कहे कि भाई तबला तोड़ी नाखवाना, એવું काम करूँगा. लास्ट थिंग, उसके बाद तैयारी हुई कि भाई अभी तो फिल्म डिडक्शन में जाना है. अगेन आई मेट टू रत्नदीप जी एंड सर वॉज शॉक्ड कि अभी ये क्यों करना है तुझे. मैंने कहा नहीं थोड़ा सा शौक है तो थोड़ा कर लेने दो. सो देन उसके बाद क्योंकि कल्चर का नॉलेज था, घूमे हैं इतना, तो फिर शुरू हुआ. तो एक प्रोजेक्ट मिला एक इवेंट का. यहाँ 2 मिनट के अलग अलग 2 वीडियो मैं आपको दूंगा. पहला वीडियो इज कवरिंग द आर्ट, 1 मिनट का है, जहाँ पर आपको एक आर्ट की रील है. ऐसे 30 आर्ट हमने गुजरात के कवर किए थे. फॉर योर इन्फॉर्मेशन गुजरात इज़ मोर देन 30, लेकिन हम लोग 30 कर पाए थे. और दूसरा है जब हमने 30 आर्ट कवर किए तब हमें लगा कि यार आर्टिजन्स का क्या, क्योंकि ज़्यादातर जो वीडियोस होते हैं वो सारे एक्टर्स वाले होते हैं. आपने देखा होगा कल्चरल वीडियोस, अमिताभ बच्चन खड़े हैं, प्रभास खड़े, प्रभास को भी नहीं पता क्या पहन के खड़े हैं. ठीक है, हाँ सर. पहले दूसरा बीच, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है. तो पहले ये आर्ट किया, फिर हमने एक एंथम ट्यून बनाई कि जो कवर करेगी सारे आर्टिजन्स को. सो ये 2 चीज़ें अगर मैं अपने काम दिखा दूँ तो थोड़ा आपको और रिस्पेक्ट आ जाएगी. ठीक है, ओके, शुड वी स्टार्ट? ओके, एक सेकंड. जिसे साड़ी पसंद ना हो, ज्यादातर साड़ी को पहले बनाया जाता है. ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसे साड़ी पसंद ना हो? ज्यादातर साड़ी को पहले बनाया जाता है, फिर उसके बाद उस पर कलर और प्रिंट चढ़ता है. लेकिन मैं जिस साड़ी की बात कर रही हूँ वो है भारत की एक अनमोल विरासत, पटोला साड़ी. पटोला इकट टेक्निक से बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले एक डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर उसी के नाप का रंग बारी बारी से हर एक धागे में चढ़ाया जाता है. ऐसी ही कुल 18 तरीके की प्रोसेस से तकरीबन 6 महीने के बाद तैयार होता है एक खूबसूरत पटोला. और खास बात यह है कि 900 साल से पाटन का सालवी परिवार इसी परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहा है. तो अगर आप भी भारत की इस अनमोल विरासत को लाइव बनते देखना चाहते हैं तो आइए कलाकुंभ फेस्टिवल 2023 में. Was it good? आपकी आवाज़ से नहीं पता चल रहा यार, ऐसा मत करो. मेहनत की है यार ऐसे. ठीक है. सो ये एक चीज़ थी. ऐसे गुजरात में 30 से ज़्यादा आर्ट है. आपने ऐसे पटोला कितनों ने देखा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 30 से ज़्यादा आर्ट है. और 30 से ज़्यादा आर्ट से आप कमा सकते हो, ये मैं बता रहा हूँ. दूसरी चीज़, ये एक एंथम ट्यून है जो उसमें सारे आर्टिजन्स को हमने एक ट्रिब्यूट दिया था कि आप लोग इतने साल से काम कर रहे हो, यू गिव अस टाइम, यू हेल्प अस टू मेड दिस वीडियो. ठीक है, तो ये ट्यून है.
सो माई लास्ट वर्ड, टूरिज्म में ये सब कुछ पॉसिबल है. थैंक यू. All right. Thank you, Keyur bhai. So what we'll do is, as a discipline, we end all our sessions at 8 o'clock because there's a staff at AMA. We have to relieve them. वो लोग सुबह वापस 8 बजे आके इंस्टीट्यूट चालू करते हैं. So anyways, what you have to do is, we'll take about 4 or 5 questions. One person can ask only one question to one person. ऐसा नहीं कीर्ति सर भी बोलो, केयूर सर भी बोलो, ऐसा मत करो. और सीधा सवाल पूछना. मेरी impression ये थी, आप क्या कहना चाहते हो? Don't do that. Okay? Quick questions. Also on your desk there is a feedback form. फटाफट से भर दीजिए. We can do more such events जो आपको पसंद आए. At AMA we take our feedback very seriously. सब कुछ हम पढ़ते हैं बैठ के. So please make sure that you put the feedback forms and give it to this gentleman here. All right. So questions quickly. Yeah. Go ahead. फटाफट. One second. I'll nominate you. Next there. Seminar का purpose. Sir, you want to take that quickly? Please take your seat, sir. हेलो. हाँ, सेमिनार का पर्पस आपको बताया गया है कि रिवॉल्यूशनरी करियर डेवलपमेंट है ट्रैवल के अंदर. क्या क्या करियर है ट्रैवल के अंदर आज की तारीख में और कौन सी नई आ रही हैं, सब ये आपको समझना है ताकि आप ट्रैवल के अंदर करियर डेवलप करना चाहते हो तो आपके पास एक समझ है, एक सोच है. टू स्टार्ट विथ. Okay. Yes, sir. जॉब के साथ भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं. चॉइस इज योर सर. अपॉर्चुनिटी रिमेन्स द सेम. The gentleman in green shirt. Yeah. जी. देखो, मिनिमम 12 इज रिक्वायर्ड. Yes. हेलो સર પણ ટ્રાવેલનો કોઈ કોર્સ ના કરે. હા. 12th કરે અને પછી અથવા બીકોમ કરે અને સીધું ટ્રાવેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવું હોય. ટ્રાવેલનો કોઈ કોર્સ કર્યા વગર જવાય? Okay. ધેટ્સ ધ ક્વેશ્ચન. yes. See, हाँ, डिफरेंस इज टू ओनली. मास्टर शेफ कितनों ने देखा है? मास्टर शेफ करके एक स्टार प्लस पे का आता है, आई थिंक. मास्टर शेफ की अलग अलग ब्रांचेज है, ठीक है ना. ऑस्ट्रेलिया होता है, अमेरिका होता है, इंडिया भी है. उसमें से जो टॉप 3 जो शेफ्स देख रहे हो, उन्होंने अपने हिसाब से नहीं किया था. उन सब ने एक करियर को पहले सीखा, उसके बाद किया, तो वो वहाँ पर है, ठीक है. और बाकी के जो लोग हैं, वो लोग जो मास्टर शेफ बनते हैं, ठीक है, उनकी जर्नी शुरू होती है आफ्टर विनिंग दिस मास्टर शेफ, जो उनका पिन होता है टैग. तो उसमें उनको 1 लाख 2 लाख 3 लाख की कंपटीशन को फेस करना है. इफ़ यू हैव दैट करेज यू कैन. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, इम्पॉसिबल कि नहीं हो सकता. बट ये डिफरेंस मैंने आपको क्लियर बता दिया. थैंक यू. और भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा, करियर ज़रूर बन सकती है. टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी है, ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसी है कि आपने कुछ नहीं किया है, सीधा ट्रैवल इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, आप ज़रूर कर सकते हो. बट जहाँ पर पहुँचना है आपको करियर के अंदर, वो पहुँचने का जो टाइम है वो आपका लंबा हो जाएगा. Okay. We had a question here in the blue shirt, gentleman. You want to ask? Achha, it was the same question. Anyone else? Anyone from behind? Any girls wanting to ask the question? Sir, can I ask quick question? We are in Gujarat. પૈસા કેટલા કમાવા મળે? મુદ્દાનો સવાલ. પરફેક્ટ સવાલ છે. પૈસા તમે 10,000થી ચાલુ કરી શકશો ઇન્ટર્નશિપમાં અને 10 લાખ કમાઈ શકશો દર મહિને. મારો એક સ્ટુડન્ટ છે જેણે લગભગ 7-8 વર્ષ પહેલાં ચાલુ કરી હતી. આજે 32 લાખ રૂપિયા વર્ષનું કમાય છે. 32 લાખ રૂપીસ. નામ, એડ્રેસ, ફોન નંબર સાથે આપી શકું છું. Brilliant. Sir, couple of quick questions because Keyur bhai said HL. I teach at HL College, Ahmedabad University. There's a matrix કે તમારે CA કરવું હોય તો you should be good at number. If you want to do actuarial science, you should be good at statistics. If you want to pursue medicine, you should be good at XYZ. 3 characteristics if you want to be in travel. What are the 3 key traits, 3 key characteristics which you should have? Otherwise, it's difficult. વન્ડરફુલ. ગુડ ક્વેશ્ચન સર. 3 વસ્તુ તમારે ટ્રાવેલમાં કરિયર બનાવી હોય સક્સેસફુલી તો જોઈશે. નંબર 1, પેશન્સ. This generation doesn't have, sorry. So, to develop your patience, you need to understand the entire career process. આજે કોઈ પણ કરિયરમાં તમે 2-5 વર્ષ આપશો પછી પૈસા કમાશો ને. પહેલા દિવસથી લાખ રૂપિયા નહીં મળે, પણ તમે તમારી પાસે પેશન્સ હશે સમજવાની, તો એ પેશન્સ તમને
ડેફિનેટલી ગેરંટીથી સક્સેસ પાસે લઈ જશે એવું આ કરિયર છે. કારણ કે તમે એક વસ્તુથી કંટાળશો, બીજો ઓપ્શન અવેલેબલ છે. એક કરિયરથી કંટાળશો, ત્રીજી કરિયર અવેલેબલ છે. નંબર ઓફ કરિયર્સ આર મોર એન્ડલેસ ઇન ટ્રાવેલ ઇન્ડસ્ટ્રી. સો તમારી પેશન્સને તમે ખાલી પકડી રાખશો કે મારે ટ્રાવેલમાં ગમે તેમ કરીને કરિયર બનાવી છે, તો કરિયર ઓપ્શન્સ ચેન્જ કરતા રહેશો, દેટ પોસિબિલિટી ઇઝ ધેર. સો નંબર 1. નંબર 2, યુ નીડ ટુ લર્ન geography well. Without geography knowledge, I mean which country, where it is placed, what is the continent, distance between two countries, language, culture, weather, all need to understand. Festival, so everything you need to understand about a particular destination. Kirti sir talked about being in Kaziranga, so કદાચ Google Map ના ચાલતા હોય કાઝીરંગામાં, so geography does matter. લકીલી આપણી પાસે અત્યારે બહુ ઓપ્શન્સ છે, બધા ઓનલાઈન ઘણું બધું અવેલેબલ છે. કોઈ તમે 2 વર્ષનો કોર્સ કરો કે 10 વર્ષનો કોર્સ કરો, આખું જોગ્રાફી ક્યારેય નહીં શીખવા મળે કોર્સની અંદર. અને મને પૂછશો કે સર તમે તો આટલા વર્ષોથી 2008-10થી તમે ટ્રાવેલમાં છો, તમને તો બધું ખબર પડતી હશે ને ટ્રાવેલમાં. મને ખાલી 2% આવડે છે. સો ધીસ ફિલ્ડ ઇઝ ધેટ બિગ. દેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટેડ ટુ ટેલ યુ. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ કન્ટિન્યુઅસ લર્નિંગ પ્રોસેસ. દેટ્સ વાય આઈ ટોલ્ડ યુ કે આમાં તમને કંટાળો જ નહીં આવે ક્યારે. કારણ કે નવું આયા જ કરશે, નવું શીખ્યા જ કરવું પડશે, નવું તમારે ડિલિવર કર્યા જ કરવું પડશે. સો ઇટ્સ ઓલવેઝ અ લર્નિંગ એન્ડ ઇટ શેર્સ હેપીનેસ, રાઈટ? એન્ડ થર્ડ, કંટ્રોલ ઓન લેંગ્વેજ. તમારો એટીટ્યૂડ અને તમારો લેંગ્વેજ તમને આમાં બહુ આગળ લઈ જશે. આ 3 વસ્તુ તમારે ડેવલપ કરવી પડશે અને તે વી ડેફિનેટલી હેલ્પ યુ ટુ હાઉ ટુ ડુ ઇટ, રાઈટ? બટ દેન યુ નીડ ટુ ગેટ ફોકસ્ડ. And by the time Keurbhai adds a point, if you want to just, anyone of you have heard of Alibaba Jack Ma? Yeah, is the richest Chinese gentleman. You can just Google one way, how did Jack Ma learn English? China માં ઇંગ્લિશ શીખવું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એન્ડ હી સેડ કે હું જે ટુરિસ્ટ આવતા હતા એ લોકોને ફ્રીમાં ચાઇના બતાવવા જતો હતો. એટલે અમદાવાદમાં કોઈ આવ્યું અમેરિકન, ક્રાઉન પ્લાઝાના મેનેજરને કહી દે સાહેબ કોઈ અમેરિકનને ફરવા લઈ જાઉં તો મને ફોન કરી દેજો ને. અને પેલો ક્રાઉન પ્લાઝાના મેનેજર વુડ કોલ યુ અપ એન્ડ સે તમારે જવું છે કોઈની સાથે કોઈક આવ્યું છે નહીં જોડે. વાત કરતાં કરતાં જેકમાં લર્ન્ડ ઇંગ્લિશ એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ હી સેડ ઇટ્સ સિંગલ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇન હિઝ લાઈફ. Otherwise he applied in Harvard 10 times, he was rejected. He applied in McDonald's, he was rejected. But he said China marine English આવડતું હતું. He picked up internet quickly, but English એટલે આવડતું હતું because he was interacting with foreigners. So that's one thing. Okay. Keurbhai, please. Yes. So sir का जो क्वेश्चन है, can you just repeat it तो फिर से इनको आइडिया दे. Sorry. जो आपका क्वेश्चन था, What are the 3 things that you must have if you want to be a good travel industry में successful person? Yeah. Number 1 thing is the power of acceptance and adoption. Number 1 thing. आज ये बहुत सिंपल मैं बताता हूँ. द पावर ऑफ अडॉप्शन का मतलब क्या होता है? जो लोग पहले 10 साल में काम करते थे वो आज 2 साल में कर सकते हैं. यस और नो? यस और नो कर सकते हैं ना? तो पहले इस चीज़ को पचा लो कि ये हो सकता है. प्रॉब्लम क्या होती है तब जब आप ये पचा ही नहीं सकते कि नहीं यार पॉसिबिलिटी नहीं है ये. आज का जो भाई ने पूछा था वंडरफुल क्वेश्चंस है ना आपका, कि व्हाट वाज द मोटिव. मोटिव सिर्फ इतना ही था कि इधर उधर बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि यार इससे बाहर भी एक दुनिया है और ये दुनिया के बारे में थोड़ा सा आपको बताया. दैट्स इट. तो नंबर 1 थिंग इज़ अडॉप्शन. सेकेंड 1 थिंग इज़ कि जो लोग, किसी ने शायद यहाँ से ही पूछा था कि भाई किसी को जल्दी करना है. आई थिंक लास्ट गाय वॉज देयर है ना, कि विदाउट करियर और ये. उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा. आपके पास एक छोटा सा खेत है. हेलो एवरीवन इज देयर? ठीक है. आपके पास एक छोटा सा खेत है और उस खेत में आपको पता है कि यार अगर मैं गेहूँ बोऊँगा तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन मुझे कुछ जल्दी खाना है. तो भाई तू एक ऐसा पेड़ साथ में बो दे जो तुझे जल्दी खाना दे दे. समझ रहे हो? जो फ्रूट जल्दी देगा. उसके बाद धीरे धीरे आपने किया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि गेहूं आपने नहीं बोए, क्योंकि आप कितने भी 2-3 अलग अलग पेड़ बोओगे वो आपको खाना दे सकते हैं लेकिन खाना जनरेट नहीं कर सकते. सो जो करियर होता है 3 साल का या 2 साल का, वो आप करते रहो. साथ में आपको लगता है मुझे ब्लॉगिंग करनी है, वो करो. राइटिंग करनी है, वो करो. घूमना है, वो करो. बट यू डोंट मैच दिस बोथ थिंग कि या तो ये या तो वो. समझ रहे हो? यहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं पटानी है भाई. एक है तो एक काम करो. काम छूट गया, 6 बजे के बाद फ्री हो गए तो उसके बाद जो गमता है, वो जो पसंद है वो करो, या इंटर्नशिप करो तो वो करो.
लेकिन जो सर ने बोला कि जो पेशेंस है, तो पेशेंस कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना है, ये दो चीज़ें सीख लो, बात हो गई खत्म. Lovely. Last question, anyone? Yes, sir, please. Any travel agent. Job आपको ढूंढनी ही नहीं है. Correct. जॉब मैं आपको ढूंढ के दूंगा, और जब तक जितनी चाहिए उतनी ढूंढ के दूंगा. आप बोलोगे ये 2 साल मैंने कर लिया, अब दूसरी चाहिए, दे दूंगा. 2 साल के बाद फिर से आओगे, तीसरी चाहिए, दे दूंगा. 5 साल के बाद फिर से आओगे, चाहिए, दे दूंगा. दैट इज माई प्रॉब्लम, नॉट योर प्रॉब्लम. और आपके बच्चे के भी अगर लिखवा के जाओगे ना कि ये आ रहा है पीछे, डन. Yes, last question, I think, seriously. Yes, yes, please. जी. एक कंप्यूटर से. Seriously, That's what I understand. seriously, the beauty of this question is आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रैवल इंडस्ट्री कितनी इजी है. This is the only industry wherein only your information, knowledge and experience counts. बाकी आपको ट्रैवल एजेंसी शुरू करने के लिए मोबाइल चाहिए, है ना सबके पास. आप ट्रैवल एजेंसी ओपन कर सकते हो. अराउंड 8 to 10 students of mine are even today running travel agency only through mobile, without office from home. खाली मोबाइल से कांटेक्ट 2-4-5 साल काम कर लिया, इंडस्ट्री में कांटेक्ट हो गए हैं और कस्टमर्स पहचानते हैं आपको. दैट्स ऑल. उनके कॉल आ जाएंगे, आपके ऊपर फेथ है, काम शुरू हो जाएगा. Okay. So, listen, sir, 2 મિનિટ. આપણે નીચે મેઇન ગેટ છે ત્યાં સર્સને રિક્વેસ્ટ કરીશ ઊભા રહે, એટલે ક્લાસરૂમ રેપ અપ કરી શકીએ, રાઈટ? જરૂર, હવે સ્ટાફને જરૂર. જવાનું છે, I અને would સવારે love to 8 do વાગે that. પાછું આવવાનું હોય. બટ ધીસ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, આઈ થિંક લાસ્ટ બેન્ચર્સ માટે આઈ ઓલવેઝ હેવ અ સોફ્ટ કોર્નર, સો પ્લીઝ યસ ગો હેડ. આઈલ ટેક ધેટ ક્વિકલી. ભોગ શું આપવો પડે ટ્રાવેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રહેવા માટે? જબરદસ્ત. પ્લીઝ ગીવ અ લાઉડ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ટુ ધીસ બોય. એટલે કાઝીરંગામાં દાબેલી ના મળે એવું મને ખબર છે, બટ યા. Yeah. I'm sure there are. Please, sir will answer. ભોગ આમાં તમારે તમારા શોખનો, તમારા ટાઈમનો અને તમારા આજુબાજુના ફેમિલીનો આપવો પડશે. તમને પેશન છે ને, તમારે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડેવલપ થવું છે, તમારી કરિયર બનાવવી છે, પછી ભોગ ના હોય, પછી તો તમે ખુશીથી કરશો. તમને આઈસ્ક્રીમ ભાવે છે ને, તમે જઈને આઈસ્ક્રીમ ખાશો તો ભોગ આપો છો, ખાઈ રહ્યા છો પ્રેમથી. એટલે તમારી પાસે, તમને આમાં પેશન છે આ ફિલ્ડમાં, પ્લીઝ તો જ આવજો, કારણ કે આ ફિલ્ડમાં નહીંતર હાર્ડવર્ક લાગશે. પેશનથી તમારા બધા હાર્ડવર્ક કપાઈ જશે. યુ વિલ એન્જોય. અરાઉન્ડ 80% ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ સેડ દેટ, આર સ્ટીલ ઇન ટુ ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી. સો મેં 2-3 હજાર છોકરાઓને ભણાયા, એમાંથી 80% છોકરાઓ જો હજી આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે આટલા બધા વર્ષોથી, 2008થી ચલાવું છું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, રાઈટ? તો દેટ રિફ્લેક્ટ્સ એવરીથિંગ. આઈ એમ શ્યોર આઈ એમ given the answer correctly. All right, thank you so much. What you. we'll do is we'll quickly, of course, give a loud round of applause to all our 3 panelists. Quickly summarizing, there's a lot of scope. At the same time, there are challenges. You can build a career if you have a good theoretical academic background. It always helps to have a degree. And finally, I just want to wrap up by saying कि as Ghalib rightly said कि सैर कर ले दुनिया की ये गालिब, जिंदगानी कब तक यहाँ. अगर जिंदगानी रह भी गई तो नौजवानी कब तक यहाँ, right? So have a good one. And what I'll request is Ratnadeep sir, Keyur bhai, they'll hang around नीचे अपने जो ऑफिस से बोर्ड रूम ની સામે. If you have some questions, you can spend some time there. All right, thank you so much everyone. Have a good evening. Yeah, sir, एक फोटो अजय भाई. Yeah. You were together at SHMM, right? Holding.
मुश्किल है because the thing is it was part of the story. was photographer भी हूँ मैं but let's do one thing. मेरा नंबर है ना 235. IHM ગાંધીનગરમાં ટૂર ગાઈડની ટ્રેનિંગ આપી ત્યાં હતા IITTM ગ્વાલિયર તરફથી હતી સો દે અપોઇન્ટેડ મી ટુ પ્રોવાઇડ ટ્રેનિંગ ટુ ટૂર ગાઈડ્સ ઓકે હા જી એ બી મારી પાસે ઓફર આવી છે કે તમારા સ્ટુડન્ટ્સને મોકલો મારી અત્યારે એક્ઝામ ચાલતી છે છોકરાઓની